So a cylinder containing gas is our system. That is what? मतलब इसके अंदर जो मटेरियल है वो हमने डिसाइड कर लिया कि गैस ही होगा पर्टिकुलरली. हम जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो लिमिटेड मतलब बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड काम कर रहा है. एक सिलेंडर एंड दैट कंटेन्स गैस और आइदर गैसेस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द कंटेनर. इसी टाइप का सिस्टम हमने इसके पहले भी 2 बार कंसिडर किया है. ठीक है. नाउ दैट सिस्टम हैज सर्टेन बाउंड्रीज. Depending on the boundary, nature of boundary, we can have that open system, closed system, or then isolated system, right? Now, this system can be described in terms of temperature, pressure, volume, and number of moles. If that system is in thermal equilibrium, then up to the end of process, मतलब initial state में जो temperature रहेगा वही final state में रहेगा. Means there is no change in temperature. In that case, that would be called as a thermal equilibrium, and that process would be an isothermal process. तो overall जो process हो गया उसमें temperature जो है that remain constant, that do not changes. So there exists a equilibrium up to the end of process. So जो process हुआ है वो हमारा irreversible ही था particularly. अब जब irreversible process है तो मेरे को किसी का क्वेश्चन था कि भैया irreversible process में opposing forces होते हैं या नहीं है, या sometimes that may happen that opposing forces are very very greater. So in that case we have to consider opposite direction of that reaction. यदि opposing force बहुत ज्यादा है तो in that case जो process को हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिजायर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए बोला था वो रिवर्स डायरेक्शन में जा सकता है. तो यहाँ पे अपोजिंग फोर्स जो है वो हमारे व्हील्स के अगेंस्ट में भी हो सकता है. ऐसे नहीं है कि नहीं होगा. रिवर्सिबल प्रोसेस जब आप बोल रहे तो उसका एक डिजायर्ड डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया है और हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वही ग्रेटर रहेगा तो ही डिजायर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस होगा. एंड इफ the opposing force is very greater, then the direction of that process will not be a desired direction, that will be opposite to that of desired direction. जो हम नहीं चाहते वो होगा, right? So एक कंसेप्ट किसी का मतलब कमेंट में था कि सर ये ऐसा रहा तो क्या होता है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी. केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम. किसी रिएक्शन कंटेनर में number of moles of gaseous product and reactant do not changes. In that case there would be an chemical equilibrium. Chemical equilibrium होगा, but there may be change in pressure or there may be a change in volume or there may be change in temperature. Means overall that system will not be in thermodynamic equilibrium. Okay, चलते आगे. So this is your system that contains a gas and that gas is made up of either atoms or the molecules. Now particularly हम इनकी बात करेंगे तो इनके बीच में जो forces of attraction होते हैं वो होते हैं very weak forces. Van der Waals forces of attraction are the weak forces, and that's why these molecules are free to move throughout the container. इस कंटेनर के अंदर वो ऊपर नीचे आजू बाजू दाएं आगे बागे किधर भी घूम सकता है. And that type of motion is called as random motion. अब इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 2 4 5 की तो बात है ही नहीं. So ये सारे मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो काफी कम है, and that's why they are moving here and there throughout the system. But during their motion what happens? They may collide with each other. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर भी तो हो सकती है. ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर कर दिया सिस्टम के अंदर तो वहां पे उनका कोलिजन होगा. Sometimes these molecules will collide with the walls of the container. तो यहाँ पे एक assumption है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स है वो निग्लिजिबल होते हैं, वन थिंग. एंड सेकंड थिंग, द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स का टर्म है. परफेक्टली इलास्टिक जब हम बोलते हैं तो देयर शुड नॉट बी लॉस इन मोमेंटम और इन काइनेटिक एनर्जी, दे गेट कंजर्व्ड इन दिस केस. तो नाउ these molecules are colliding with this walls of the container. So what that will give rise? When such a molecules collides with the walls of container, then direction of velocity initially ये था मेरा, after collision वो return back हो रहा है तो magnitude may be same but the direction is different. So because of that such a collisions are elastic बोल रहे हम, लेकिन there is a change in direction, so there will be a change in momentum. And if such a change in momentum is correlated with the time,
then that will be the rate of change of momentum. Rate of change of momentum. और अब हमारा न्यूटन सेकंड लॉ भी आता है, वो क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. तो फोर्स आ गया, देखिए पहले कोलिजन हो गया, कोलिजन इलास्टिक था, तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम से हम आ गए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकले हम गए फोर्स पे. अब आ जाएंगे हम फोर्स पर यूनिट एरिया पे, एंड दैट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस. तो गैस का प्रेशर कहां से आता है, ये मैं बता रहा था कि द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द, देखिए हमारा टॉपिक अलग है, हमारा टॉपिक तो इंटरनल एनर्जी है, बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी सम कंसेप्ट कि भैया गैस है तो उसका प्रेशर किधर से आता है, क्या उसमें प्रेशर भी भरा जाता है हवा से? नहीं. These molecules are in a continuous state of random motion. That is the first one. During their motion, they collides with each other, and due to collisions with the walls of the container, collisions with the walls of container हम consider कर रहे हैं as a elastic collisions. So rate of change of momentum will give rise to the force, and force per unit area will give rise to the pressure. दोनों चीजें आ गया. अभी प्रेशर कहां से आ गया ये हमको समझ में आ गया होगा. अब वहां से थोड़ा आगे चलते. ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन्स व्हेन दिस टू मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद ईच अदर दे फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ. यहां टक्कर हो गई, कुछ देर बाद में दे कोलाइड्स विद ईच अदर. आफ्टर कोलिजन दे विल फॉलो द डिफरेंट पाथ. नाउ द पाथ बिटवीन टू पार्टिकल्स और पाथ आफ्टर कोलिजन इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ. अब हर कोलिजन के बाद में वो एक दूसरे से टकराएंगे, फिर एक तो इधर जाएगा, एक तो इधर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर किधर भी जाता है, तो भी देयर पाथ्स आर दी स्ट्रेट लाइन पाथ. ठीक है. नाउ स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई बॉडी मूव करता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, तो हम उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं. मींस दीस पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन, मींस ट्रांसलेशनल मोशन. और अब ये मोशन से रिलेटेड कोई एनर्जी की बात करता है तो दैट विल बी अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. देखिए हमने सिर्फ एक ही टाइप का मोशन कंसीडर किया है, ट्रांसलेशनल मोशन. अमंग द सक्सेसिव कोलिजन्स द मॉलिक्यूल follows a straight line path, means that molecule will move along this straight line path. So such motion will be called as a translational motion. अब ट्रांसलेशनल मोशन में जो एनर्जी आएगा that will be called as ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. अभी ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो यहां तक का सही था, बट इफ इट इज अ डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारा डायटोमिक भी हो सकता, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता. तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, एक ये न्यूक्लियस उसका, ये दूसरा एटम. सो दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई. This molecule can rotate about this axis of rotation, either in clockwise or in anti-clockwise direction. Molecule will rotate about an axis perpendicular to a line joining the two nuclei. सादी भाषा में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, मैं बहुत इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वगैरह बोलना नहीं चाहता. So this is a straight line joining the two nuclei in a diatomic molecule. So this molecule can rotate about an axis which is perpendicular to the line joining the two nuclei. ये हमारा लाइन है दो न्यूक्लियाई को जोड़ने वाला, and this is imaginary axis of rotation. So this molecule can rotate about this axis, and this will give rise to what type of energy? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. देखिए मॉलिक्यूल के पास कौन सी एनर्जी आ रही है? That molecule is performing translational motion, so that will give rise to translational kinetic energy. The molecule is performing rotational motion about an axis which is perpendicular to the line joining the two nuclei. In that case, that will have the rotational kinetic energy. यहां से भी आगे चलते हैं. Now, if this is your diatomic molecule, then bond between them is considered as an elastic spring. If you consider that bonds are rigid actually. But if this one is considered as an elastic spring and then it is stretched, and then release, what happens? Bonds are considered as an elastic spring, then they are stretched and then release.
रिलीज कर दिया तो क्या होगा, they will perform vibrational motion, and such a vibrational motion will give rise to vibrational kinetic energy. और एक कंट्रीब्यूशन आ गया, so all these types of energies are the kinetic energy and that are associated with the molecular motion. मोशन कैसे भी हो, ट्रांसलेशनल हो सकता, रोटेशनल हो सकता, वाइब्रेशनल हो सकता. हमने सिर्फ 3 इमोशंस कंसीडर किए यहाँ पे, एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन गिव राइज टू काइनेटिक एनर्जी. चलो, एनर्जी का एक पार्ट तो हमारे समझ में आ गया कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है दे विल हैव आइदर दिस टाइप ऑफ एनर्जी और ऑल टाइप्स ऑफ द एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ चलते आगे. नाउ इफ द मॉलिक्यूल इज देयर, then there will be bonds. Bonds are nothing but the attractive forces that exist among the molecules. Now एक मॉलिक्यूल मेरा ये है, ये ऑक्सीजन है और ये 2 उसके छोटे छोटे हाइड्रोजन है. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. Another molecule is there, oxygen, 2 hydrogen atoms are there. Okay, then one more oxygen and 2 hydrogen atoms are there. So these molecules have some intermolecular forces of attraction. What is that? Intermolecular forces of attraction. मतलब है किसी टाइप का बॉन्डिंग हो गया. Various types of molecules are linked together, and linking among these molecules are called as intermolecular forces of attraction. जो कि वाटर में होता है हमारे पास में. वाटर हमारे लिए गैस नहीं है, वाटर हमारे लिए गैस नहीं है, हम तो लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं उसको. there may be vapor or any kind of other molecules can have the associative forces that holds the molecules somewhat together. देखिए, गैस का मॉलिक्यूल they are far apart from each other, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है बहुत कम होते हैं. बट व्हाट आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस? they are called as the bonding forces. now this is the intermolecular forces. now मीथेन ले लेते, एक अच्छा मॉलिक्यूल है. ये हमारा कार्बन है, ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन. So this is your methane molecule. ये तो गैस होता है. CO2 ले सकते हैं आप, गैस होता है. N2 गैस होता है. SO2 ले लिया आपने, CH4 ले लिया, HCl ले लिया, तो सारे गैसेस है. तो गैसेस मॉलिक्यूल्स में भी some attractive forces are there that may be van der Waals forces, weak van der Waals forces, very weak, but that is one type of bonding. चलो ठीक है, ये तो weak हो गया. Now this molecule here is your carbon. now यहाँ पे weak बोलेंगे आप. एक ही मॉलिक्यूल लिया मैंने, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको. दीज आर द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, दीज आर द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, सो दैट विल आल्सो गिव राइज टू सम काइंड ऑफ एनर्जी. सो बॉन्डिंग जो है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. विद इन द मॉलिक्यूल वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम्स आर रिमेनिंग टुगेदर. CO2 ले लिया मैंने, CH4 ले लिया, HCl ले लिया. तो यहाँ पे इन आइटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. नाउ ये टाइप जो है, ये तो काइनेटिक एनर्जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए आपके. पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू बॉन्डिंग एंड दैट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी प्लस इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी. तो ये बॉन्डिंग की वजह से है और ये मोशन की वजह से. तो दैट सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड these molecules have the motion, molecular motion give rise to kinetic energy, and there exists certain kind of attractive forces called as bonding forces, and these bonding forces give rise to potential energy. attractive forces होंगे खास तौर से. तो अभी मैं आपको एक इंटरमॉलिक्यूलर तो पता है आपको, हाइड्रोजन जो है वाटर में, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने वाटर का, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया वाटर वेपर में सपोज. तो ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंसीडर होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. सो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस टू, दिस इज पॉजिटिव, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी देयर. सिमिलरली यहाँ पे
नाउ इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रह रहे हैं यहाँ पे, थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्डिंग हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का भी बॉन्डिंग हो सकता। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन खास तौर से हमने ऊपर में हाइड्रोजन नहीं लिया है। नाउ दूसरा लेते हैं, ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है आपका, ठीक है। इसमें देखेंगे आप तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। अब यहां पे मैं एक नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूं। So this type of bonding is called as intramolecular hydrogen bonding. This is within the same molecule, two different atoms are linking to each other by some attractive force. That is intramolecular. और यहाँ पे various molecules are remaining together by attractive forces. That is intermolecular. You got the difference between intermolecular and intramolecular. So this type of attractive forces give rise to one kind of energy called as potential energy. तो अब हमारे सिस्टम की तरफ हम वापस चलते हैं। सिस्टम के अंदर जो भी गैस होगा, सिलेंडर कंटेनिंग गैस, ये हमारा परमानेंट सिस्टम भी होगा ये चैप्टर के लिए। अब इन सम केसेस देयर आर सम रिएक्शंस आल्सो, बट एक सिलेंडर कंटेनिंग गैस होगा। नाउ दिस गैस कंटेन्स आइटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इनका जो मोशन होगा, मोशन की वजह से कंट्रीब्यूशन आएगा काइनेटिक एनर्जी का, और जो बॉन्डिंग होगा दैट विल गिव राइज टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आइटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर देयर एंड ईच ऑफ देम पजेसेस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स को तो हमने पहले ही बोल दिया कि डज नॉट रिलेटेड टू द पार्टिकल सिस्टम। इसको तो बल्क में मटेरियल चाहिए, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 10 मोल, 20 मोल, 1 मोल, 2 मोल, वॉट एवर इट में बी। तो ये तो बल्क में काम करता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन की बात आ गई है, तो सारे कंट्रीब्यूशन सारे मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा करेंगे, देन दिस सिस्टम विल possess certain amount of energy. This certain amount of energy associated with the system due to molecular motion and bonding is called as internal energy of the system. देखिए, हमको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये नहीं करो तो ये समझ में भी नहीं आता। So system के अंदर जो मटेरियल है that consists of either atoms or the molecules, such atoms or molecules or the particles of the system are in motion, which contributes to some kinetic energy, and the attractive forces among these particles give rise to potential energy. The overall sum of kinetic and potential energies of the particles give rise to the total energy of the system, and that total energy of the system is called as an internal energy of the system. It is a thermodynamic function. Energy associated with the system due to molecular motion and energy associated with the system due to molecular motion and bonding so it is denoted by a letter U. U जो है वो इंटरनल एनर्जी के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो रहेगा। Sum of kinetic energy due to molecular motion and potential energy due to bonding.
is given by ऊपर ले लेंगे नाउ काइनेटिक एनर्जी में तीन कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एक ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, दूसरा रोटेशनल मोशन की वजह से, तीसरा वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। ये तीन कंट्रीब्यूशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के हो गए। वो कहां से आ गए? ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। इंटरमोल प्लस इंट्रामोल ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्ट्रीब्यूशन से, ये बॉन्डिंग की वजह से आ गया। सो दिस इज ओवरऑल energy associated with the system due to molecular motion and bonding, and that energy content of the system due to molecular motion and bonding is called as internal energy of the system. Yeah, any doubt? Okay. So this is a state function and extensive property. जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा होगा सिस्टम में उतना इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। एक बड़ा पहलवान लेके आ गया अपने हाथी जैसा तो उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, दूसरा पहलवान मेरे जैसा लेके आओगे तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम हो गया तो उसका एनर्जी भी कम रहेगा। मतलब इंटरनल एनर्जी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। It is a state function. It depends on initial and final states of the system. U2 minus U1. U2 क्या है? इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट। So this will be delta U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए V के साथ मिक्स मत करना, इसको V के साथ मिक्स मत कर देना। ये U है आपका, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और यू कैन राइट U फाइनल माइनस U इनिशियल, इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स रैपिड, बहुत फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी चेंजेस होंगे। तो डेल्टा यू जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में इंटरनल एनर्जी में लॉट ऑफ चेंजेस आते हैं। इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इनिशियल स्टेट में जितना होगा उतना ही फाइनल स्टेट में होगा। इरिवर्सिबल हो गया तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो एट द एंड होगा। मतलब ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो थर्मल इक्विलिब्रियम तो यहां पर रहेगा। इफ दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगा, चेंज जो है वो जीरो होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जहां तक का है वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, जितना इनिशियल स्टेट में होगा उतना ही फाइनल स्टेट में होगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल नॉट टेक्स प्लेस इफ दैट प्रोसेस इज इन थर्मल इज आइसोथर्मल और दैट सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वी गॉट दिस वन। चलते आगे। तो अभी हमारे पास में तीसरा पैरामीटर आ गया। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास में था हीट, दैट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी Q। उसके बाद दूसरा फॉर्म हमने कल सीखा, दैट वाज वर्क W। अब तीसरा जो है वो इंटरनल एनर्जी है। अब इन तीनों को कोरिलेट करने के लिए हमारे पास में है कुछ, तो वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि हम बचपन से 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे बोलते हैं आप? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। अरे यार कितनी बार रट्टा मार मार के पेपर में लिख दिया आप लोगों ने ये चीज, तो है ना। अब ऐसा नहीं करना है, अब ऐसे नहीं करना है। बस भैया एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। सो हम जो है हम एनर्जी क्रिएट भी नहीं करते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, सिर्फ एक फॉर्म वाला जो एनर्जी है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं, राइट। सो जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कंटेंट जो है वो रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए। अब जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते तो क्या बोलेंगे? अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या नहीं होता, एनर्जी बाहर जा नहीं सकती, कांस्टेंट। मैटर भी बाहर नहीं जा सकता, वो भी कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी तो बोल सकते कि टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो दो स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया, एक तो बचपन से सीखते आ रहे वो लॉ एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड वाला। तो ये से तीन स्टेटमेंट तो आपके पास में वैसे ही आ जाएंगे। देखते आगे। So this is based on law of conservation of energy. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। बहुत सिंपल है, तो इसके आगे पीछे का कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भैया सिस्टम में से निकालोगे तो सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग में से निकालो तो सिस्टम में आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। The total internal energy of an isolated system remain constant. और तीसरा तो आपको आता ही है, कौन सा?
Energy can neither be created nor destroyed, though it can be converted from one form to the other. All the above statements are equivalent to the first law of thermodynamics. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम क्रिएट नहीं करते, हम क्या करते, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास में अवेलेबल है, देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर. फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोल बहुत मात्रा में अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, कोल कंटेन्स केमिकल एनर्जी, ओके ठीक है, नाउ कंबशन करेंगे, उसको जला देंगे, दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. हमारे पास बहुत सारे क्रैकर्स है, क्रैकर्स में क्या रहेगा, केमिकल्स, केमिकल्स के साथ में एसोसिएटेड एनर्जी केमिकल एनर्जी. After explosion what happens, that chemical energy is converted into light, sound, right, light and sound जैसे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज जस्ट कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर. हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस की बात करते हैं, वहां क्या होता है, वाटर जो है, वाटर पोजेसेस मैकेनिकल एनर्जी, दैट में बी काइनेटिक और दैट में बी पोटेंशियल, बट होल दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हमारे घर में लेके आ गए हमने इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम क्या करेंगे उसका, हम बहुत कुछ करेंगे उसका, पानी गर्म करेंगे, मतलब हीट में कन्वर्ट कर दिया. हम लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, लाइट एनर्जी में चला गया. हम फैन चलाएंगे, हम एसी चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, व्हाट, यू आर कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द वेरियस फॉर्म, बट टोटल एनर्जी जो है यूनिवर्स का, दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एंड दैट इज व्हाट अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. कैन neither be created nor destroyed. फिर तैयार भी नहीं करते, खत्म भी नहीं करते, तो करते क्या यार, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं आप, सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से. चलते आगे, ये कोई नया नहीं था आपके लिए, काफी पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं आप. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसको मैथमेटिकली कैसे रिलेट करेंगे हम. तो हमारे पास में होगा एक सिस्टम जिसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 होगा, उसमें हम हीट ऐड कर देंगे, तो फिर क्या होगा, देयर में भी एक्सपांशन. यदि आप उसमें से हीट निकाल लेंगे तो कूलिंग प्रोसेस हो गया, कूलिंग प्रोसेस जनरली रिलेटेड टू कंप्रेशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा. मतलब इफेक्ट ऑफ हीटिंग क्या है हमारे लिए, तो दैट इज आइदर एक्सपांशन और कूलिंग, राइट. जब कूलिंग हो रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है, जब हीटिंग कर रहा है, हीट इज एडेड टू द सिस्टम, देन एक्सपांशन विल टेक्स प्लेस, वर्क विल बी ऑब्टेन्ड. तो यहाँ पे हीट का इफेक्ट आपको वर्क में दिख रहा है. साइमल्टेनियसली आप जब हीट कर रहे हैं तो देयर मे बी चेंज इन टेम्परेचर. एंड अब मेरे पास में एक सिस्टम है जिसका एनर्जी आपका इनिशियल स्टेट में U है, इसमें आपने Q ऐड कर दिया. Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. सो फिर क्या होगा, प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस में क्या होगा, वर्क होगा. वर्क के बाद में सिस्टम का फाइनल स्टेट हो जाएगा, इनिशियल स्टेट A है, फाइनल स्टेट आपका B है. सो व्हाट हैपेंस, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस, एक बात. दूसरा, सम पार्ट ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड एंड ड्यू टू वर्क दैट प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. वर्क ही नहीं होगा तो प्रोसेस कहां से होगा, है ना. So that process will take place with this work, means some energy is utilized into work. तो ये जो Q है ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, और ये तीनों का जो भी प्लस माइनस आएगा, that will be the energy in final state. फाइनल स्टेट में जो एनर्जी रहेगा वो कितना रहेगा, पहले कितनी थी, इतनी, कितना ऐड किया Q, बाद में क्या हो गया, वर्क हो गया. इन तीनों का सम कर देते हैं आप, then U2 will be energy in final state will be, पहले कितना था U1, फिर क्या किया हमने, Q ऐड कर दिया, फिर क्या हो गया, वर्क भी हो गया. एनर्जी इन फाइनल स्टेट विल बी द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट प्लस हीट सप्लाइड प्लस वर्क.
इन तीनों को हमने ऐड कर दिया and that will give rise to internal energy in final state. तो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं U2 minus U1 that is equal to Q plus W. तो ये इंटरनल एनर्जी का चेंज हो गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा U is equal to Q plus W. So change in internal energy is equal to sum of work and heat supplied or heat removed from the system. If the changes are too small, काफी small changes यदि हमारे पास में, तो you can have that du is equal to dq plus dw. For small changes, du will be equal to dq plus dw. अब dw हमने कल किया है, pdv लिख सकते, w लिखना है तो p डेल्टा v भी लिख सकते, हमने ये एक्सप्रेशन कल किया था. तो इसके लिए हमको करना क्या है? सबसे पहले एक सिस्टम कंसीडर करना है ऑफ विच इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U1 रहेगा. Let U1 be the internal energy in initial state. U1 जो है वो हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इनिशियल स्टेट. Q Q क्या रहेगा हमारा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? U2 माइनस U1 कर देना है. So U2 minus U1 क्या होता है? तो बोले चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट विल बी डेल्टा U. अब W का वैल्यू रख भी सकते और नहीं भी, P डेल्टा भी रखना भी है, नहीं भी रखा तो भी चलता है, Q प्लस W. फॉर इनफाइनाइट सिमल चेंजेस, स्मॉल चेंजेस जब रहेंगे तो दैट विल बी du इज इक्वल टू dq प्लस dw. Heat plus work. So that is your mathematical expression, delta U is equal to Q plus W. That is a mathematical expression for first law of thermodynamics. ये आता है most of the times पेपर में होता है ये, और इसी के भरोसे हम और एक एक्सप्रेशन करेंगे and then we'll switch over to some other things.
सो इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वर्क डन का एक एक्सप्रेशन और करेंगे, बाद में वर्क और एनर्जी के यूनिट्स पे काम करेंगे एंड देन विल स्विच ओवर टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब हो जाता है हमारा, तो उसको हम वेरियस प्रोसेसेस पे लगाएंगे। देन हमारे वर्क का एक एक्सप्रेशन बाकी, इफ दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल, वो करेंगे हम, एंड देन वी विल स्विच ओवर टू मैथमेटिकल पार्ट। इससे कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं वर्क डन पे, हीट पे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे। दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, इतना हो गया आप लोगों का। ओके, जो वीडियो लिंक्स या वीडियोस में डायरेक्टली सेंड करता हूँ, कितने लोग देखते हैं? देखते तो सभी है, देखते सभी है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो ड्यूरेशन है देखने का काफी शॉर्ट है। इतना सा देखते, पता नहीं क्या करते बाद में। उसको भगा भगा के देखते 2 मिनट में। आज करीबन 40 मिनट का तो होता है मिनिमम ड्यूरेशन जो है रिकॉर्डिंग का, वो 40 मिनट का होता है। लोगों का मैं देखा हूँ 2 या 3 मिनट के ऊपर नहीं देखते लोग। ये आप इसको बार बार जब सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें धीरे धीरे क्लियर होंगी। फर्स्ट टाइम में एकदम सारी चीजें क्लियर नहीं होती। ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास में ये भी फैसिलिटी है कि दैट कैन बी रिवाइंड। हम पास्ट में चल जाते, फिर से 4 से 5 आप रिवाइंड कर लेते हैं। तो उसको जितनी बार सुनोगे ना, उतना आपको कम एफर्ट लगेगा काम करने में। जब आप किसी इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसको 3-4 बार जब सुनेंगे, हम बार बार वही वही रिवाइंड करेंगे। ये फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है कि हम इसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं बार बार, राइट? सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। यहां रुकेंगे हम, यहां रुकेंगे। इस एनी प्रॉब्लम? हिमांशु डन, डन, ओके। तेजस, श्रुति, हिमांशु, तो ये आपको कुछ गेन करना है तो ये सारी चीजें जो कंसेप्चुअली बहुत अच्छी होती है ना, तो ये चैप्टर का आड़ा टेढ़ा कोई प्रॉब्लम रहता है। जो हायर लेवल की एग्जाम्स होती है उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपका कितना बिल्डअप है उस पर डिपेंड करता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, और ये चीजें वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ रुकेंगे हम। ओके पूर्वा, चलो यहाँ रुकते हैं।